کے پیارے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جس کی شان و شوکت کے بارے میں، جس کے رتبے کے بارے میں، جس کی مرتبے کے بارے میں، جس کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، حضرات محترم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر دیا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشد بہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی قید کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے حضرات محترم اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جن کی شان و شوکت کے بارے میں بریلی کا امام کہتا ہے، بریلی کے امام نے قلم اٹھایا ہے اور یوں لکھتے ہیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی خدا ہے تم دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے حضرات محترم اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جس کے شان و شوکت کے بارے میں میرا امام کہتا ہے کہ صبح توبہ میں ہوئی کرتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لوگوں نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے حضرات محترم اس نبی کی بارگاہ میں سب لوگ بھی درود پاک پڑھتے ہیں جن کی شان و شوکت کے بارے میں امام احمد رضا نے کہا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی قیامت ہو بھیجے سب ان کی شوکت میں لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے مدفوع کہے ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا مولانا محمد بن عادل الجود والکرام وآلہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جو ہے دل کے بھگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے بھگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صحیح بات ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ نظامی میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا، بے شک۔ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پیارے اسلامی بھائیوں بڑا سنجیدگی کے ساتھ سنیں، مجھے فاسٹ والی تقریر بھی آتی ہے، ہلکے والی بھی آتی ہے، جیسا چاہیں ویسا سنیں، مگر تھوڑا پیار کے ساتھ سنیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری طرف تحقیق کہ تمہاری طرف آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتاب سے مراد قرآن کریم اور نور سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ڈالا گیا، ان سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کی پشت میں آ گیا۔ حضرت وہاب یہ کون ہے؟ میرے سرکار کے نانا ہیں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت وہاب غریب ہیں، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، پڑوس والوں کو اکٹھا کیا، خاندان والوں کو جو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں لوگوں میں تم سے ایک حضرت وہاب نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں ایک مشورہ چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں میری بیٹی آمنہ اب بڑی ہو چکی ہے، نکاح کے لائق ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ حضرت عبدالمطلب جو ہمارے آقا کے دادا ہیں، کہتے ہیں ان کا بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے عبداللہ جن کا نام ہے وہ بھی شادی لائق ہے، میں سوچتا ہوں کہ میری بیٹی آمنہ کا نکاح ان سے ہو جائے۔ وہاں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ جو ہے میری بیٹی کی شادی لائق ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت عبدالمطلب جو قریش خاندان کے سردار ہیں، جو کعبے کے متولی ہیں،
اتنا سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم کہتے میں چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ حضرات محترم تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، تمام رشتہ دار بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں وہاں میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اتنے بڑے سردار کعبہ ہیں، اتنے بڑے قریش کے خاص سردار ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، تو غریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا؟ کیسے اپنے بیٹے کے ساتھ تیری بیٹی کا نکاح کر لیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت وہب کہتے ہیں نہیں میں جانتا ہوں، وہ بڑا سخی ہے، وہ سردار کعبہ ہے، ان کے دروازے پر کوئی بھی گیا ہے جناب والا کہتے کوئی لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ حضرت وہب چلے اپنے گھر سے، جانے کے بعد حضرت عبد المطلب کے دروازے پر دستک دی ہے۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب باہر آتے ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھا؟ حضرت وہب زمین پر آ گئے، آپ کے پیروں پر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں عبد المطلب سردار کعبہ میں ایک تمنا لے کر تمہارے در پر آیا ہوں، ایک چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بہت کھڑے ہو۔ حضرات محترم کہتے ہیں کوئی مانگنے آتا ہے ہم اسے اپنے دروازے کی دہلیز پر نہیں بٹھایا کرتے، سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے وہاں بتاؤ کیا لینے کے لیے آئے ہو، بتاؤ کیا چاہتے ہو، بتاؤ کیا سی دولت چاہتے ہو، بتاؤ کیا لینا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت وہب کہتے ہیں اے عبد المطلب، اے سردار کعبہ، اے سردار قریش، اے کعبے کے متولی، میں تمہارے دروازے پر آج کوئی چیز مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کوئی پراپرٹی مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، پیسے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں، تمہارے بیٹے کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے جو ہے سر پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہتے ہیں اے وہب بتاؤ تو صحیح تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے؟ حضرات محترم آپ کہتے ہیں میری بیٹی کا نام آمنہ ہے، آمنہ امن سے بنا ہے، آمنہ سلامتی سے بنا ہے، آمنہ سکون سے بنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم آج دنیا کے اندر بھی شادیاں ہوتی ہیں، تھوڑی سی بات آج حضرات محترم بتاتا چلو، آج دنیا کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، لوگ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ پیسہ کتنا ملے گا، گاڑی کون سی ملے گی، دہیج کتنا ملے گا، فریج ملے گا نہ ملے گا، بیٹر دیا جائے گا نہ دیا جائے گا، نام نہیں پوچھا کرتے۔ حضرات محترم کہتے ہیں بتاؤ اسکول کی پڑھائی کتنے کی ہے؟ حضرات محترم ذرا یار سوچو اپنے جو ہے دل سے، ایک مکے کے اندر شادی ہو رہی ہے، آج ہماری یہاں شادیاں ہوتی ہیں۔ حضرات محترم ہم سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ یار بتا تو صحیح سونے کی انگوٹھی ملے گی نہ ملے گی، ساس کو گھر میں دی جائے گی نہیں دی جائے گی؟ حضرات محترم اس بات کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو غریب ہے 400-500 کے حضرات محترم مزدوری کرنے والا ہے، جیسے تیسے گزر کر رہا ہے، 3-4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم نے تو اپنی مانگ رکھ دی، مگر اس بات کو دل سے پوچھو جس نے حضرات محترم بڑا کیا ہے، ان کی شادیاں کرنا چاہتا ہے مگر اتنی دولت نہیں ہے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں حضرات محترم، اپنے گاؤں میں دیکھو، اپنے پریوار میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، حضرات محترم غریبی کی وجہ سے، دہیج نہ دینے کی وجہ سے ایسی چلے کتنی لڑکیاں ہیں جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی ہے، ابھی تک ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے حضرات محترم؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اس کا باپ اتنا دہیج نہیں دے سکتا ہے، حضرات محترم دہیج میں پانچی گاڑی نہیں دے سکتا ہے۔ یار سیکھو حضرت عبداللہ کی شادی سے، سیکھو میرے آقا کے باپ کی شادی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت وہب کہتے میری بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ حضرات محترم عبد المطلب کہتے ہاں ٹھیک ہے، میری بیٹی کے ساتھ رشتہ پکا ہے۔ حضرات محترم کہتے شادی کب لے کر آؤ گے؟ اللہ اکبر کہتے 30 سے شادی آ جائے گی، کتنے لوگ لے کر آؤ گے؟ کہا 11 جنے آئیں گے، 11 لوگوں سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ یار ہماری شادیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ 500 لوگ شادیوں میں جاتے ہیں، 400 لوگ شادیوں میں جاتے ہیں۔ کچھ فکر تو کرو، فکر تو کرو، کچھ غور تو کرو، اس بیٹی کی بات پر رحم کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 مکے کے اندر شادی، 2 حضرات محترم نکاح کیا جا رہا ہے، صرف 11 لوگ نکاح کے اندر جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کا شادی لے کر چلے ہیں، صرف حضرات محترم 11 لوگ گئے۔ حضرت آمنہ کی شادی، حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم عبداللہ سے نکاح ہوا، حضرت آمنہ گھر پر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم کچھ دن گزرے تھے، کچھ ماہ گزرے تھے، وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پشت میں تھا وہ حضرت آمنہ کی شکم میں پہنچتا ہے۔ ابھی 2 ماہ گزرے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آمنہ میں پردیس جانا چاہتا ہوں، آمنہ کچھ کمانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ وہ لائق بیوی تھی، کہتی میرے سردار ابھی سے جانے کی بات کرتے ہو، ابھی تو زندگی کی بہاریں شروع ہوئی ہے، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ماہ گزرے ہیں، ابھی تو میرے جو ہے شکم کے اندر تمہاری امانت آئے ہوئے کچھ دن گزرے ہیں، کچھ ماہ گزرے ہیں، تم ابھی سے جانے کی بات
बात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं ए मेरी शरीक हयात मैं फला देना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला चले कमाने के लिए, तिजारत के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा वादा करके गए कितने दिनों में वापस आऊंगा। जब वो दिन वापस आया, अल्लाह अकबर कबीरा जब दिन आ गया, हज़रत आमना आटा गूंथ रही है, चूल्हा जल रहा है, बड़ा खुशी में है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी बात क्या है, आज बड़ा खुश नजर आ रही है, आटा भी तेज तेज गूंथ रही है, बात क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। आमना कहती है अब्बा जान आज मेरे अब्दुल्ला आने का वादा कर गए हैं, शाम का वक्त हो गया मगर अब्दुल्ला नहीं आए हैं। शाम गुजर गई, अब्दुल्ला नहीं आए हैं, रात होने वाली है, अब्दुल्ला का कोई पता नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से आमना कहती है बाबा जान जरा मेरे अब्दुल्ला का पता तो लगाओ, मेरा अब्दुल्ला कहाँ रह गया, बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चले हैं, अभी हरम शरीफ में पहुंचे थे, एक नौजवान दौड़ता हुआ आता है, आने के बाद कहते हैं सरदार काबा, कहते हैं मुतवल्ली काबे के मुतवल्ली कोई जो है बड़ी खबर लेकर आया हूँ, मेरी ओट कांप रही है, बताना नहीं चाहता हूँ मगर मजबूरी में बताना पड़ रही है। कहा बता तो सही खबर क्या है। कहता है तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला था। अल्लाह अकबर। कहते रास्ता में उनका इंतकाल हो गया है। हज़रत मोहतरम इतना सुनना था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जो है दिल पर बिजली गिर गई, क्या लेकर जाएंगे उसका घर के अंदर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चले हैं, घर के दरवाजे पर पहुंचे, जाना तो चाहते थे मगर हिम्मत नहीं पड़ रही है, आमना को क्या जवाब दिया जाएगा, आमना पूछेगी तो क्या बताऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर पहुंचे, आमना कहती अब्बा जान आ गए, मेरे अब्दुल्ला नहीं आए हैं। हज़रत आमना ने जब इतना पूछा, अब्दुल मुत्तलिब ने चीख निकल गई, कहती बेटी आमना आज के बाद अपने अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, आज के बाद अब्दुल्ला लौट कर नहीं आने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन अब्दुल्ला है, जैसे हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ प्यारे थे, ऐसे अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला प्यारे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा था। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना ज़मीन पर बैठी, अपने हाथ को अपने शिकम पर रखा, रखने के बाद कहती मौला अभी मेरा बच्चा जमीन पर नहीं आया है, मौला मेरे बच्चे ने अभी आँख नहीं खोली है, उससे पहले तो ये यकीन कर दिया है। वो गैब से आवाज आई और आवाज देने वाला कहता है आमना घबराना, परेशान ना हो, ये बच्चा जो आने वाला है हमने उसे यतीम नहीं बनाया, सिर्फ यतीम नहीं बनाया है बल्कि तमाम जहां के यतीमों का मालिक और वारिस बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इतना सुना हज़रत आमना रोने लगी। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम कुछ माह गुजरे, उस वक्त आमना बेवा हुई जिस वक्त मक्के के अंदर बेवाओं को मनहूस माना जाता था। मक्के का रिवाज था, एक रिवायत के मुताबिक कि जो बेवा हो जाती है उसे 2 साल तक जो है अपने शौहर का गम मनाना होता था। 2 साल तक वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, तेल नहीं लगा सकती, सुरमा नहीं, खुशबू नहीं, शौक मनाना 2 साल तक। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में 1 साल तक। उस वक्त आमना बेवा हुई। कुछ दिन गुजरे, कुछ माह गुजरने के बाद हज़रात मोहतरम जैसे जैसे मेरे नबी माँ की शिकम में आते गए वैसे वैसे नबी की जो है नूर जाहिर होने लगा। हज़रात मोहतरम कुछ माह गुजरे तो जो है मक्के के अंदर एक अफवाह गुजरने लगी, अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे आमना ऐसी खुशबू लगाती है कि आज तक किसी के पास से ऐसी खुशबू नहीं आती। अभी शौहर को मरे हुए कुछ माह गुजरे हैं, उन्होंने उनका गम मनाना छोड़ दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। ये बात काबे में होते हुए अब्दुल मुत्तलिब के पास कुछ लोग पहुंचे और कहते हैं कि आप काबे के मुतवल्ली हो, सरदार कुरैश हो अब्दुल मुत्तलिब, मगर एक बात कहना चाहते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बताओ क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा था ऐ अब्दुल मुत्तलिब हमने सुना है तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी बहू आमना ने अपने शौहर का शोक मनाना छोड़ दिया है, अपने शौहर के हज़रात मोहतरम शोक नहीं मना रही हैं, अपने शौहर के इंतकाल के बाद ऐसी खुशबू लगाती हैं कि लोग कहते हैं ऐसी खुशबू पूरे काबे के अंदर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब
मैंने इतना सुना, आपकी आंखें सुर्ख हो गई। कहते क्या बात करते हो, मेरी बहू की जैसे पूरे काबे के अंदर, पूरे मक्के के अंदर बहू नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा था ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हम नहीं कहते हैं, ये पूरे मक्के के अंदर बातें हो रही हैं। अब्दुल मुत्तलिब वहां से चले, अपने घर के अंदर आए। आने के बाद अपनी शरीके हयात से, जिनका नाम फातिमा है, हज़रत मोहतरम ये मेरे आका की दादी है, इनका नाम भी फातिमा है। आने के बाद कहते हैं ऐ मेरी शरीके हया, जाओ तुम आमना के पास जाओ और जाके पूछो तो सही कि उन्हें हमारे लाल का शौक मनाना क्यों छोड़ दिया है, कब मनाना क्यों छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आमना कहती मेरी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या बात है। कहते कुछ रोज पहले मैंने कहा था ऐ आमना तुम्हारे जिस्म के अंदर से खुशबू कहाँ से आती है, ये खुशबू कहाँ से लाती हो। मैंने इतना पूछा था, उनकी पेशानी से एक ऐसा नूर चमका, मेरे ऊपर पड़ा, मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं आमिना ये तो बता क्या मेरे अब्दुल्ला तुझे प्यारे ना थे। ऐ आमिना क्या तू मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत ना किया करती थी। कहती हुजूर ऐ अब्बा जान कौन से आज तुमने मेरे दिल पर हाथ रख दिया है, कौन से गम का तार छेड़ दिया अब्दुल मुत्तलिब ने। अल्लाह अकबर कहती है आमिना कहती अब्बा जान जब से अब्दुल्ला गए हैं उस दिन से एक भी रात मेरी ऐसी ना कटी है जिस रात मेरे अब्दुल्ला को याद करके ना रोई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आमिना कहती है अब्बा जान एक राज मेरे सीने में था जो तुमसे छुपाना चाहती थी, मगर आज तुम्हारी नाराजगी की वजह से बताना पड़ रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते कौन सा राज है। हज़रत आमिना कहती है बाबा जान जो तुम पूछते हो ना ये खुशबू कहाँ से आती है, मैं कोई इत्र नहीं लगाती, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। हज़रत मोहतरम दौड़ कर गई और जाने के बाद हज़रत मोहतरम मिट्टी की दीवार से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और आपके हाथ पर रखी और रखने के बाद कहती बाबा इसे सूंघो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघी, मिट्टी महक रही थी। हज़रत मोहतरम गई तकिया लेकर आई, हज़रत मोहतरम कहती तकिया सूंघो, तकिया सूंघा, तकिए के अंदर से खुशबू आ रही थी। आमिना कहती है बाबा जान यहाँ तक बात नहीं है, मैं जहाँ पर हाथ रख देती हूँ वो जगह महकने लगती है, चली जाती है वो जगह महकने लगती है, जिस चीज को छू देती हूँ उसकी खुशबू खत्म नहीं होती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वजह क्या है, आमिना ये बात क्या है, इसका राज क्या है, ये मामला क्या है। हज़रत आमिना कहती है बाबा जान जिस दिन से तुम्हारे बेटी की अमानत मेरे शिकम में आई है उस दिन से अजीब अजीब बातें होती है, उस दिन से अजीब अजीब कहानियां होती है, उस दिन से मैं जिस चीज को छूती हूँ वो महकने लगती है, जिस चीज को पकड़ लेती हूँ वो महकने लगती है, जहाँ बैठ जाती हूँ वो महकने लगता है, जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ खुशबू आने लगती है। कहते बात क्या है। आमिना कहती है कि जिस दिन से तुम्हारे बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है ये उस दिन से हो रहा है, ये मेरी बात नहीं है, आने वाले बच्चे की बरकतें हैं। जब इस पर नजर इमाम अहमद रजा खान की पड़ी, हमारी सुन्नियत की जान, बरेली की पहचान इमाम अहमद रजा खान की पड़ती है तो बरेली का इमाम कहता है उनकी महंगे दिल के बच्चे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं, क्या जहन्नम अपनी नसब हो गए गोरों के मुस्तफा ने दरिया बहा। सुभान अल्लाह, गोरों के मुस्तफा ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महंगे दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती बाबा जान यहाँ तक बात नहीं है। कहते और बता। कहते जब मैं जो है कुएं पर पानी लेने जाती हूँ तो सारे काबे की, सारे मक्के की औरतें जो हैं डोल और रस्सी से पानी निकालती हैं, और जब मैं पानी लेने जाती हूँ तो कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है जब तक मैं वहां खड़ी रहती हूँ पानी ऊपर रहता है। पूरे मक्का की औरतें कहती हैं आमिना तेरी बरकत से पानी ऊपर रहता है, थोड़ी देर और ठहर जा। मैं ठहर जाती हूँ, वो सब भर के जाते तब पानी नीचे जाता है। कहती यहाँ तक नहीं, कहती है जो है मैं जब पानी लेकर आती हूँ रास्ते से गुजरती हूँ, जिस जगह जाती हूँ हज़रत मोहतरम कहती बाबा जान उस जगह के पेड़ पौधे, उस जगह के पत्थर, उस जगह के कंकर मुझसे बातें किया करते हैं, बोलने लगते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था पता क्या कहते हैं। आमिना कहती बाबा जान जिस जगह
से निकलती हूँ ना, उस जगह के पेड़ पत्थर पौधे घास फूस सब कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलल्लाह, ऐ रसूलल्लाह की माँ, ऐ हबीबे खुदा की माँ, तुम पर सलाम हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नारे खुशी के हज़रात मोहतरम झूमने लगते हैं, कहते हैं सब कुछ आने वाले बच्चे की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। अब वक्त गुजरता गया, हज़रत आमना कहती है कि हर महीने कोई ना कोई नबी मुझे मुबारकबाद देने आता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत अल्लाह। आमना कहती है वो वक्त भी आया जब मेरे लाल की विलादत का वक्त करीब था, वो रात भी आ गई। कहती है उस रात मुझे अब्दुल्ला की बहुत याद आई। चिराग के अंदर तेल नहीं था, मैंने सोचा आज अब्दुल्ला होते तो चिराग के अंदर तेल का इंतजाम करते, काबे के मक्के में जाकर कुछ दाया को बुलाते, मेरी मदद करती। अल्लाह अकबर कबीर। कहती इतना मैंने कहा, कहती मेरे घर का दीवार फटी, 3 औरतें आई। अल्लाह अकबर। कहती उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे, उनका कद खजूर के बराबर था। सुभान अल्लाह। हज़रत आमना कहती है कि मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। मैंने एक से पूछा कौन हो, आज से पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। तो आने वाली ने एक ने कहा था मुझे हब्बा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहा जाता है। तीसरी ने कहा मुझे आयशा, मुझे जो है आयशा कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम कोई ना कोई नबी आता रहा। हज़रत आमना कहती है कि जब मेरी लाल की पैदाइश का वक्त आया ना, तो उस वक्त मेरे घर में अंधेरा था, रोशनी का इंतजाम नहीं था। हज़रात मोहतरम कहती कि फिर एकदम मेरे जिस्म के अंदर से एक ऐसी रोशनी निकली, एक ऐसा नूर निकला, मैंने उस नूर से शाम के महल तक देख लिए थे। बेशक। ये सब सुभान मेरे अल्लाह। आका की बरकतें थी। हज़रात मोहतरम कहते जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया तो हज़रात मोहतरम सबकी माओं की तमन्ना होती, दुनिया का रिवाज है कि सबसे पहले अपने बेटे को देखे किस पर गया है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके नाक कैसी है, उसके होंठ कैसे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आमना कहती हैं कि मैंने जब देखा तो मेरे लाल की सुरमा लगा हुआ था, बालों में तेल लगा हुआ था, खतना करा हुआ था, नाक कटी हुई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम कहती हैं कि जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ ले आया, हज़रात मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। जाने के बाद लोगों ने एक बच्चा दौड़ता हुआ गया और जाने के बाद कहते हैं क्या खूब बच्चा तुम्हारे घर पर आया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े हैं, अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जो है मैं अपने घर के दरवाजे पर था, मैं अंदर जाना चाहता था, मगर दरवाजे पर एक नौजवान तलवार लिए खड़ा हुआ है, उसने मेरे आगे तलवार लगा दी। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब तुम नहीं जा सकते हो। कहते हैं तुम मुझे जानता नहीं है, मैं सरदार काबा हूँ, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, मेरा घर है, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। वो नौजवान ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम वाकई सरदार काबा हो, काबे के मुतवल्ली हो, ये तुम्हारा घर है, मगर ये तुम्हारा पोता भी है, मगर रब का फरमान है कि इस बच्चे को पहले फर्श अर्श वाले देखेंगे, बाद में फर्श वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता गया, बहुत लंबा बयान, वक्त गुजरता गया। फिर जो है हज़रत हलीमा की गोद में भी हज़रत मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुँचे। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जो है एक मरतबा मैंने आका को दूध पिलाया और पिलाने के बाद मेरे झूले में सुला दिया। आज दुनिया की माएँ भी अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद सुलाती हैं तो देखती हैं कि सो रहा है या नहीं सो रहा है। हज़रत आमना कहती है कि मैंने आका को दूध पिलाया और पिलाने के बाद दोबारा देखने गई कि आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आमना कहती है कि जब मैंने आका को दोबारा देखने के लिए गई कि मेरे आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं, हज़रत आमना ने देखा कि मेरे आका की उंगली आसमान की चांदी पे ठोई हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। आमना आसमान के चांद को देखती है, कभी मेरे आका की उंगली को देखती है, कहती हो क्या गया है, मेरा दिमाग तो नहीं चकरा गया, मेरा सर तो नहीं घूम रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आमना कहती मैंने देखा मेरे आका की उंगली झोले में कभी दाएं जा रही थी तो आसमान का चांद दाएं जा रहा था, मेरे आका की उंगली झोले में बाएं जा रही थी तो आसमान का चांद दाएं जा रहा था। कभी मेरे आका की उंगली सिरहाने जा रही थी तो आसमान का चांद सिरहाने जा रहा था, कभी पैती जा रही थी तो आसमान का चांद पैती जा रहा था।
अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, मेरे आका की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है, मेरे ज़हन में आला हज़रत का शेर घूम रहा है कि उंगली उठाते जिस तरफ चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते जिस तरफ, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हज़रात मोहतरम, मेरे नबी की शान बड़ा आला है। दुनिया के अंदर रब ताला ने जो भी भेजा, जो भी कुछ आया है, सब मेरे नबी के सदक़े में, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कुछ मेरे नबी के सदक़े में आया। और हज़रात मोहतरम, अपनी जिंदगी को सुधारें, अच्छे कामों में जिंदगी को लगाएं। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, सामने से हट जाए। बेशक हक बात चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, जो है वो है। शरीयत सब पर लागू है, बेशक शरीयत से कोई बच नहीं सकता। ये ढोल, ये ताशे, ये डीजे, ये गाने, ये बजाने, सब बेकार की बातें। बेशक अगर कामयाब कोई है तो वो आशिक रसूल है, जो सच्चा मेरे नबी का गुलाम है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर जिंदगी नबी से इश्क में गुजारी तो समझ लो यहाँ भी कामयाब है और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब है। बेशक जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। सुभान तो अल्लाह। अशार समाज फरमाए कि मिस्र से मिस्र जब मिलता हूँ और आके महफिल में फिर सुनाता हूँ, कि मिस्र से मिस्र जब मिलता हूँ आके महफिल में फिर सुनाता हूँ, हर जरूरत पड़े फिर मिला लेना, अगर जरूरत पड़े फिर मिला लेना, टाइम काफी हुआ मैं जाता हूँ। निशाद रहे, बाग बाग जाओ तेरा गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह पाक इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, जो भी गलती हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।